Assalamu alaikum students. Today we deliver 37th lecture of function analysis. This is the continuation of the topic of Hilbert spaces, inner product spaces. In the last lectures, 35th and 36, we defined convex set, line segment, then convex set. Uh, Similarly, we prove a theorem. So in the next, we'll prove a lemma. We state a lemma and then prove this lemma. This lemma is actually connected with the last theorem, in which we state if X is an inner product set and M is a complete convex subset of X, then there exists a vector y belongs to M such that x minus y norm is equal to the distance of x from M. We prove the existence of this element of M and uniqueness of this element of M in the last lecture. No, the lemma states as let X be an inner product space and M not equal to phi be convex and complete subspace of X, and X belongs to X be fixed and Y belongs to M be such that X minus Y norm is equal to dxM, which is equal to infimum of X minus Z norm. Z belongs to M is equal to del. Say this is equation A. Then Z is equal to X minus Y is orthogonal to M. That is, X minus Y is perpendicular to orthogonal to M. So in this lemma, we say the element which we prove in M in the last M complete convex subset of an inner product space X in the last theorem. So the vector x minus y, whose norm is equal to the distance of x from the set M, actually this vector is perpendicular to M. This vector is orthogonal to M. This vector is orthogonal. What means by orthogonal to M? Some vector is orthogonal to some set if its inner product with every element of M is 0. We give its proof. Here we discuss its proof. Now suppose contrary that Z is equal to X minus Y. This X minus Y, Z is equal to X minus Y is not orthogonal to M. If it is not orthogonal to M, that is y naught belongs to M such that x minus y naught in the product not equal to 0. What it means, if some vectors is orthogonal to n set, then then that vector's inner product with every element of that set is inner product is 0. If it is not orthogonal to that set, then there exists at least one vector on one point of that set such that given vector's inner product with that vector is not equal to 0. तो इसमें जैसे आप देखेंगे हमने प्रूव करना है कि x माइनस वाई वेक्टर जो है ये ऑर्थोगोनल है, अगर ऑर्थोगोनल होगा तो उसका m के हर पॉइंट के साथ इनर प्रोडक्ट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा. अगर हम सपोज करते हैं कॉन्ट्रेरी कि ऑर्थोगोनल नहीं है तो इसका मतलब है m में एटलीस्ट एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा जिसके साथ इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 इक्वल नहीं होगा. इस वेक्टर को हम यहाँ से y नॉट कह रहे हैं. Now suppose say this is equation 1. Suppose x minus y inner product with y naught is equal to beta. ये beta equally clearly y naught not equal to 0 since otherwise x minus y naught inner product is equal to 0.
हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब है वाई नॉट जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है। ऑल्सो y not is equal to 0 implies x minus y not inner product mod is less or equal to x minus y norm y norm काशोस इनइक्वालिटी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में होल्ड करती है। ये काशोस इनइक्वालिटी हमने अप्लाई की। दिस इज x माइनस वाई नॉर्म और y नॉट अगर जीरो हो तो उसका नॉर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई इनर प्रोडक्ट x माइनस वाई विद y नॉट इनर प्रोडक्ट्स mod is equal to 0. Uh, why? Because actually Rx x minus y vector with y naught vectors inner products mod is less or equal to 0, क्योंकि mod जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होती है। इसलिए इसका मतलब है ये इक्वल टू जीरो होगा और ये इक्वल टू जीरो होगा। तो जीरो के अलावा किसी भी चीज़ का mod जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब है ये एक्स वाई वाई नॉट इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होगा तो यही तो हमारी सपोजिशन है कि एक्स माइनस वाई वाई नॉट इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो विद वाई नॉट इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब वाई नॉट जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है। Now, for any scalar alpha, z minus alpha y naught norm square, we can write this. हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट में और नॉर्म में रिलेशन होता है कि इनर प्रोडक्ट से नॉर्म डिफाइन किया जा सकता है। x norm is equal to x inner product square root या x norm square is equal to x inner product. So x minus alpha y naught norm square is equal to z minus alpha y naught norm square is equal to z minus alpha y naught with z minus alpha y naught inner product। इसको ज़ाहिर है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के जरिए हमने खोल लिया। पहले भी हमने काशवाज इनइक्वालिटी के प्रूव में और कुछ प्रूव्स में इस तरह की चीज़ों को खोला। is z inner product z minus alpha y naught inner product and minus alpha y naught का z के साथ inner product minus alpha y naught का alpha y naught के साथ inner product। यहाँ से अल्फ़ा कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर आ गया, माइनस इधर बाहर आ गया। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। और जैसा कि पहले वेक्टर से स्केलर वैसे ही बाहर आ जाता है, दूसरे फैक्टर से प्रोडक्ट दूसरे फैक्टर से स्केलर कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आता है। तो यहाँ से माइनस दोनों फैक्टर से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर आ गया। ये हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लिया विद हेल्प ऑफ इन प्रोडक्ट एक्सिम्स एंड its consequences. So according to relation between inner product and norm, this is z norm square, this is y norm square. सिमिलरली यहाँ पे हमने इनर प्रोडक्ट में फैक्टर्स की जगह बदली, हमने y नॉट और z को आपस में रिप्लेस किया तो ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। z माइनस वाई नॉट इन प्रोडक्ट को हमने ऊपर बीटा के इक्वल सपोज किया है। हमने सपोज किया था कि एक्चुअली x माइनस वाई वाई नॉट इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा और x माइनस वाई नॉट इन प्रोडक्ट हमारे पास z के इक्वल है। तो z वाई नॉट इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा। तो z वाई नॉट इन प्रोडक्ट को हमने बीटा के इक्वल यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये आगे हमारे पास z नॉर्म स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, दिस इज बीटा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट प्लस y नॉर्म स्क्वायर। सो फॉर्म है इस इन दो टर्म्स में से माइनस अगर अल्फा हम कॉमन लेंगे तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट y नॉर्म स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। हम अल्फा को यहाँ पे बीटा ओवर वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर पुट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं पर हमने इसको क्लेरिफाई भी किया कि वाई नॉट जो है वो ज़ीरो वेक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब वाई नॉट नॉर्म भी ज़ीरो नहीं है। सो वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर के साथ डिवाइड किया जा सकता है। वाई वन ओवर वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर एक फील्ड का एलिमेंट हमारे पास बन गया लाइक गैमा और multiplied by beta। तो gamma multiplied by beta यानी वन ओवर वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर, ये भी एक स्केलर है और बीटा भी एक स्केलर है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमने एक नया स्केलर अल्फा को इन दोनों के इक्वल पुट कर दिया और अल्फा कॉन्जुगेट मीन बीटा कॉन्जुगेट ओवर
वाई नॉट नॉर्म स्केयर के ऊपर कॉन्जुगेट डालने से क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता. वाई बिकॉज नॉर्म ऑफ सम वेक्टर इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट उतना ही होता है. यहाँ पे हमने अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. ये बीटा कॉन्जुगेट और वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी बीटा कॉन्जुगेट और वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर. वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर से ये कटिंग हो गई. तो ये हमारे पास बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट ज़ीरो हो गया. तो हमारे पास एक्चुअली z माइनस अल्फा वाई नॉर्म z minus alpha y naught norm square is equal to z norm square plus beta modulus square over y naught norm square. तो बीटा मॉडुलस स्क्वायर कहाँ से आया ये देखते हैं हम. बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कॉन्जुगेट मीन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट्स. z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट z मॉडुलस स्क्वायर. तो इस तरह से ये मॉडल बी मॉडुलस बीटा मॉडुलस स्क्वायर हमारे पास आ गया. और जैसा कि हम जानते हैं कि z जो कि इक्वल है x माइनस वाई के, तो z का नॉर्म इक्वल है x माइनस वाई के नॉर्म के, और x माइनस वाई का नॉर्म इक्वल है डेल के. हमने कोई नंबर ए में थ्योरम की स्टेटमेंट में हम बता चुके हैं. तो यहाँ पे z नॉर्म को हमने डेल के इक्वल पुट कर दिया. दिस इज डेल स्क्वायर माइनस बीटा मॉडुलस स्क्वायर ओवर वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज z माइनस अल्फा वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर is uh, इज लेस देन डेल स्क्वायर. ये डेल स्क्वायर से लेस कैसे आता है ये देखिए. डेल स्क्वायर में से ये चीज़ माइनस होकर इसके इक्वल आ रही है. तो जो पार्ट हमारे पास माइनस हो रहा है अगर हम उसको यहाँ से ओमिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी. ऐसे ही जैसे हम एक चीज़ में से कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं, तो अगर वो माइनस नहीं करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी. क्योंकि ये डेफिनेटली ज़ीरो नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास कम कोई पॉजिटिव चीज़ डेल स्क्वायर में से कम होकर इसके इक्वल आ रही है. तो अगर जो चीज़ पॉजिटिव कम हो रही है उसको हम कम नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, डेल स्क्वायर को ही रहने देंगे, तो डेल स्क्वायर ये वाली राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी. तो c minus alpha y naught norm square is less than del square. This is equation number 3. But we know z minus alpha y naught which is equal to z किसके इक्वल था x minus y वेक्टर के माइनस अल्फा y नॉट. तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये y प्लस अल्फा y नॉट बन गया. और वाई एम क्योंकि हमारे पास सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, हम जानते हैं सब स्पेस में किसी भी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी को बिलोंग करता है. तो वाई भी एम का एलिमेंट है, वाई नॉट भी एम का एलिमेंट है. तो वन मल्टीप्लाइड बाय वाई, यानी जैसे हम कहते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू दैट सेट. तो सब स्पेस का हमारे पास एक रिजल्ट है. सो इससे वन like a scalar multiplied by y plus beta की जगह alpha multiplied by y naught. Now this belongs to m. Say this vector is a y dash vector. So this must be belongs to m, and x minus this. So this is equal to x minus y dash. That implies z minus alpha y naught norm square is less than del square z minus alpha y naught norms less than del square. This implies that x minus y dash norm square is less than del square. Why? Because these two vectors are equal. If x minus y dash is equal to z minus alpha y naught, and z minus alpha y naught norm square is less than del square, तो z minus alpha y naught की जगह इसकी वैल्यू x minus y dash पुट कर दी, तो ये हमारे पास x minus y dash norm square less than del square आ गया. इसी तरह दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x minus y dash less than हमारे पास del आ गया. But this is impossible. Why? Because the definition of del, del की हमारे पास definition क्या है? डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास n के एलिमेंट से x के डिफरेंस का नॉर्म
नॉर्म्स जो आते हैं उनका इन्फिमम हमारे पास इक्वल होता है डेल के। तो डेल जो है वो हमारे पास जिन नंबर्स सेट ऑफ नंबर्स का डेल हमारे पास इन्फिमम लिया जाता है जो कि डेल है, वो उसमें से किसी भी इंडिविजुअल नंबर से लेस और इक्वल टू होता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास डेल जो है वो ग्रेटर आ रहा है एक्स माइनस वाई नॉर्म से। सो दिस इज इम्पॉसिबल। We have z minus alpha y naught norm is equal to x minus y dash norm. Y dash is greater or equal to del. So there is a contradiction. Uh, ये हमारे पास contradiction आ रही है, that implies one cannot hold and thus proved. So इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वाई नॉट के साथ वो जीरो नहीं है।